पश्चिम बंगाल में 23 और 29 तारीख को मतदान होना है। इस बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दों के ऊपर वोट डाले जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है और जिस मुद्दे को लेकर लोग जो है बंगाल में इस बार विचार भी कर रहे हैं, वो है सुरक्षा का मुद्दा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज से ठीक एक साल पहले इसी दिनों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो धुलियान क्षेत्र है वहां पर हिंसा देखने को मिली थी। हिंसा इस कदर थी, आगजनी इस कदर था कि दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। चंदन दास और हरगोविंद दास जो उनके पिता थे, उन दोनों की हत्या की गई थी और हत्या करके इसी जगह पर जो आप पेड़ देख रहे हैं जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये शमशेरगंज का जाफराबाद का इलाका है और यहीं पर जो बॉडी है वो रख दी गई थी। और उस वक्त आप सोचिए ये स्थिति थी कि 4 घंटे तक लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर बॉडी को हटा सके। लेकिन अब हालात बदले हैं और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उनको लगाया गया है ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। आसपास के इलाके में जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर यहाँ पर पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है और लोगों में एक सुरक्षा की भावना हो और जो डर है वो लोगों के अंदर से इस पूरे इलाके में खत्म हो, इसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है और पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ लगातार जो मॉनिटरिंग है वो इस पूरे इलाके की जा रही है ताकि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी जो सूचना है या फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर किया जा सके। और लगातार अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि इस इलाके से परिचित नहीं है या फिर अगर पुलिस को इस पर शक होता है तो उसको रोक कर यहाँ पर जो फोर्स है वो पूछताछ भी करती है, उनसे बातचीत भी करती है। ये जो आप घर देख रहे हैं ये हरगोविंद दास और चंदन दास का है और इसी घर के अंदर से उनको निकाल कर जो है उनकी हत्या की गई थी। उनके घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनकी माता जी यहाँ पर मौजूद हैं। काकी अभी क्या हालात है, अभी ठीक है आप लोग? भालो तो হ্যাঁ, এখন তো ভালোই আছি। এখন ওই যে বিএসএ চলে যায় তো আমাদের লেগে পুলিশ থিয়েছে আমরা কি দেখার লেগে, আমরা বিএসএ ক্যাম্প চাই না তো বেচতে পারবে না। এখন যে মুসলমানের অত্যাচার। 1 साल हो गया पूरा, হ্যাঁ 1 बरस। হ্যাঁ, 1 বছর হলো, একদিন হলো আজ, 1 বছর 1 দিন। अगर आप बता पाए क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे हुआ था ये पूरा, কে अगर आप बता पाए। কিভাবে বাড়িতে তো আমাদের সব ছিল, আমাদের কিচ্ছু জানে না। খুব সব আগে থেকে আন্দোলনের যে শুক্রবার বাজারে হলো, আমাদের কিচ্ছু জানে না। আমাদের তো মুড়ি খেয়ে চানা মুড়ি খেলে যেখানে হরদোলালতলা থেকে পান লিয়ে এলো, আর পান না হলে হয় না। পান টান খেয়ে বাড়িতেই বসে আছে। এর মধ্যে সাড়ে সব প্রাইভেট পড়ে এলো আমার পোতারা সব। 9:30 থেকে শুরু হলো, দিয়া হতে হতে সব দেখছে হই হাল্লা, একবারে সব লাঠি ঠ্যাঙা ফালা ফারসা সব বম পিস্তুল নিয়ে চলে এলো। একবার হলো, দুবার হলো, 3বারের বেলায় আরও ঘনিয়ে সব এলো। বাড়িতেই ছিল, ওই যে এই দরজা ভেঙে ফেলে দিয়েছিল, ছিল না খুব। তো রাতের এই মমতা আসবে বলে রাতে 1টাই লাগিয়ে গেছে সব পুলিশেরা। দিয়া এখান থেকে একটা পাথর মেলে, আগে এলে তো ইঁটে তো পাল্লা লেগেছিল, একটা পাথর মেলে লাকসুরা ফেটে গেল। আর একটা পাথর ছুড়লে ওই ধারে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে সেখানে লাগলো। দিয়া এই ধারে ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, এই এক ধারে বাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এখান থেকে টানতে টানতে নিয়ে যে ওখানে নরকে আমার স্বামীকে একবার এইভাবে ফাঁসাইছিল। এতখানি খাওয়া হয়েছে কিছু ছিল, মুখকে থেঁতলে থেঁতলে পাথর দিয়ে ভেঙেছে। আর আমার ছেলেটাকে খাসি কাটা করে কেটেছিল। ও একটু জিন্দাও ছিল কিন্তু তো কলবল করেছে খুব। এর বাবা, এটাই আমার পতির বাবা। ঘরে গামছা লিয়েও ছিল, পোতারা পা বাঁধছে, আমার লাথি পা বাঁধছে সব গামছা দিয়ে। রক্ত থামে না, কেউ গাড়ি নিয়ে আসে না। যদি কেউ একটা গাড়ি নিয়ে এলো তো নিয়ে গেল যে ওই গোড়ার ধারে কলবল করছে খুব, ওখানে দম ছেড়ে দিলে বলছে কি নাই মরে গেল বাবা। আমার ছেলেটার কথা বলছে। আর আমার স্বামীকে তো এখন ভোজালি মেললে কি কুরুল মেললে কি দিয়া যে কাটলে আমি কিছু জানি না। আমার একটা লাথি গিয়ে নিচে নেমে এসেছিল, বড় লাথিটা, ওকে তেড়ছে ধরতো শালাকে বলে। আমি বলছি কি চলে যা সিঁড়ি দিয়ে, যা বলছে দিদা দাদু পরে আছে ওখানে, মামা পরে আছে ওখানে। তো পরেই আছে ওখানে দাদু, ওখানে মামা। যে দেখছি তো अभी भी डर लग रहा है आपको? डर लगता है? হ্যাঁ, भय? ভয় আর কি করবো, ভয়। তখন বিএসএ তো চলে এলো, তো ওখানে 4 ঘন্টা কেটে পড়ে থাকলো, বিএসএ এলো। এখন তো এরা আছে, ভয় তো লাগে না। এখন কিছুই কেউ বলতে পারবে না। এখন তো বিএসএ ছিল, এখানে বিএসএ থাকতো।
স্কুলে থাকে সব সময়, চতুর্দিকে ডিউটি করে ওরা। এখন এরা কোথায় আছে? ওরা বলে ইয়ে হচ্ছে, ভোট হচ্ছে বলে কোন দিকে, যে ওরাকে পাঠাইছে ওদিকে। देखिए अभी चुनाव है और ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। जो स्थिति थी उस वक्त 1 साल पहले, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने थे, हरगोविंद दास और चंदन दास की जिस तरीके से हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी। और सोचिए कि रो रो कर यहाँ पर उनकी जो माँ है और जो हरगोविंद की पत्नी है वो अपनी कहानी बता रही हैं कि क्या स्थिति थी उस वक्त। आप सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे, समझेंगे कि 1 साल पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के धुलियान क्षेत्र के यहाँ पर जाफराबाद इलाके में, धुलियान इलाके में, अगर हम कहें बेदबुना गांव में क्या स्थिति हुई थी, क्या हालात थे। इस वक्त हम इसी गांव से रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे थे। पीछे जो आप मकान देख रहे हैं ये चंदन दास और हरगोविंद दास का ही है, जहां पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 साल बीत चुके हैं, चुनाव है और चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नॉर्थ बंगाल में और विशेष रूप से मुर्शिदाबाद के अंदर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है मुर्शिदाबाद में हुई पिछले साल की हिंसा। इस हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो बात कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो उनकी पत्नी है, वो बता रही हैं कि जब तक पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ है, तब तक तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब ये चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा। मनोज के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑन भारत, मुर्शिदाबाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व में रोज शाम 6:25 खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।